कर डाला। अब पता नहीं अब मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, चलिए पुतिन साहब के मुंह से सुनवा देता हूँ। राष्ट्रपति हैं विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, गलत और झूठ इंफॉर्मेशन नहीं चलती भाई साहब, झूठ नहीं बोला जाता। आइए। Are using foreign mercenaries from the Middle East also. They use civilians as human shields, hiding behind their backs. And we have facts, we have pictures of how they deploy heavy weapons in the residential areas of their cities. And we have facts, we have pictures of how they deploy heavy weapons in the residential areas of their cities. ठीक है, जो आज पुतिन आपको बता रहे हैं यही मैंने आपको बताया था 2 दिन पीछे, वही वीडियो दिखाई थी कि लोगों को वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा, उन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, उन कॉलोनीज के अंदर लोगों को रख लिया और उसमें से छुप कर अंदर उसमें तोप लगा दी गई है। ये वॉर क्राइम है सर, आप वहां नहीं लगा सकते तोप, जहां लोग रहते हैं वहां नहीं, सैनिक नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पर वहां से फायर किया जा रहा है रशियन सोल्जर्स के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं बंधक बनाना, ऐसे बंधक बनाया है। ठीक है, ऐसे हॉस्टेज क्राइसिस क्रिएट किया गया। Действуют именно таким образом, самыми крайними бандитами. And that's how gangsters act. And instead of realizing their promise to remove these weapons from the residential areas, from the kindergartens, from hospitals, they do the opposite. They put their mortar guns, they put their tanks, they put their cannons, and they are taking foreign citizens hostage, thousands of young people, students who were studying in Ukraine colleges. So for more than one day, they kept more than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there. एक दिन से ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा लोगों को एक दिन से ज़्यादा रोका गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति पुतिन बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, महराज कहते हैं गोदी मीडिया बनने की कोशिश मत कर। महराज एक बात बताऊँ, आप यहाँ आते हो, आप भी देखते हो, मैं भी आपको बुरा बोल सकता हूँ पर मैं बोलूँगा नहीं। आपको भी मालूम है कि पूरा आपका खानदान भी लग जाए ना, पूरा खानदान भी लग जाए, तो मेरे एक दिन के लाइव के बराबर की इंफॉर्मेशन एक हफ्ते में नहीं ला सकता। आपका पूरा खानदान लग जाए, मुझे नहीं मालूम आपके कितने लोग हैं, पर मैं ओपन चैलेंज ठोक रहा हूँ आपका पूरा खानदान भी लग जाएगा ना, तब भी एक हफ्ते में भी एक लाइव के बराबर इंफॉर्मेशन नहीं ला पाओगे। और इसीलिए आप यहाँ आते हो देखने, यही एकमात्र कारण है कि आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती है। मोदी गवर्नमेंट should share the same India first policy. People saying you have joined BJP, we should stay and work in India and help India grow. सर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में अगर किसी को लगता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। खैर आइए। Including 576 people in the city of Sumy, neo-Nazis opened fire on Chinese students who wanted to leave Kharkiv. 2 of them were चाइना के स्टूडेंटों को भी बना रखा है बंधक भैया, सिर्फ अपने को नहीं। तो जो जो अमेरिका के साथ है या अमेरिका से तटस्थ है उन सबको बंधक बना लिया उन्होंने, उन जगहों पर जहाँ जहाँ वो हैं उनको वहाँ पर बंदूक तोप को डिप्लॉय कर दिया। वेरी गुड, हो सकता है भाई, पता नहीं है सही है नहीं है, एक और देख लेते हैं, आइए और देख लेते हैं। And that's how they do. That's how the worst gangsters are doing it. And instead of fulfilling their promises about removing the weapons from residential areas, from kindergartens, from hospitals, they do the opposite. They put more mortar guns, more tanks, more artillery in there. And they are taking hostage foreign citizens, including thousands of students, those who studied, went to college in Ukraine for more than one day. At the train station in Kharkiv, 3,179 Indian citizens were held prisoner there. And they're still there. Most of them are still there, including 576 people in Sumy. Neo-Nazis opened fire on Chinese students who tried to leave Kharkiv. 2 of them were wounded. Once again, hundreds of foreigners want to leave the area of hostilities, but they are not allowed to. Basically, they are taken prisoners, or they suggest to evacuate via Lvov to Poland. So they want them to move across the entire hostilities zone, putting their lives under risk. Our servicemen opened corridors in all the areas where the battle is going. They are providing them with transfers so that civilians, foreign citizens, had a chance to move to safer zones. ठीक है, सब क्लियर है। तो जो आपको जानकारी दी गई थी वो सही है। कुछ लोगों का आज इस एडवाइजरी को देखने के बाद एकदम से कुछ लोगों को लगा कि मैंने कल गलत जानकारी दी। आज कुछ लोगों ने ट्विटर पे टैग किया, काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर पे टैग किया कि सर ये जानकारी कैसे आ गई।
तो शाम को पुतिन साहब ने बोल दिया कि नितिन शुक्ला सही बोल रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है, कभी गलत नहीं मिलेगी। बस आप समझ नहीं पा रहे चीज़ों को कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मकसद है वो मकसद है अपने लोगों को वहाँ से निकालना, किसी भी कीमत पर सेफली निकालना। और उसके लिए उनकी मजबूरी है कि वो ये नहीं बोल सकते, चोर को ये नहीं बोला जा सकता कि तुम चोर। देखो किसी ने आपके घरवाले के गर्दन पे चाकू रख रखा है, तो आप उससे प्यार से बात कर, भैया छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए हम दे देंगे। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि बेटा तू ये तो कर ले, इसके बाद देखना तेरा क्या होगा, क्योंकि वो आपके व्यक्ति की गर्दन काट देगा। तो फिलहाल अपनी मजबूरी क्या है, उंगली अपनी दबी है, तो अपने को प्यार से निकालना। मोदी जी बहुत प्यार से निकाल रहे हैं, बहुत आराम से। और अब मतलब कुल मिला के यूक्रेन और रशिया दोनों इस बात पर, एक बात पर एग्री हो गए हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सेफ पैसेज दिया जाएगा, यानी अब वहाँ से इवैक्यूएशन बहुत आराम से हो जाएगा, लड़ाई अपनी जगह चलेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए, उसको आगे लेता हूँ, पहले ज़रा दूसरी चीज़ देख लें। यूक्रेन ने क्या किया, ये यूक्रेन में लोग पोल से बांध दिए गए। क्यों बांध दिए गए? यूक्रेनियंस आर टैपिंग लूटर्स ऑल अराउंड कंट्री टू लैंप पोस्ट एंड टेलीफोन पोल्स यूजिंग रोप एंड टेप। वो हथियार बांटे थे ना, हथियार जनता को, हाँ, तो वो लूटर्स, उससे लूट हो रही है साहब, गन पॉइंट पर रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ये लो जी, दिस वन हैंड पैंट्स पुल डाउन एंड 10 टेप्ड इन फ्रीजिंग कोल्ड। ओके, यू डोंट वांट टू पिक अप अ गन, दैट्स फाइट फॉर योर कंट्री लाइक मोस्ट यूक्रेन, बट यू डोंट गो ऑन लूटिंग होम्स एंड बिजनेसेस। भाई नहीं लड़ना देश के लिए मत लड़ो, लेकिन बिजनेस को और घरों को मत लूटो। या अराजकता का जो माहौल आ गया है उसकी स्थिति है। पीपल एक्यूज ऑफ लूटिंग बीइंग परेडेड थ्रू कीव, ये स्थिति है साहब। ये यूक्रेन में भगदड़ मची हुई है, ये भयंकर हाल है यूक्रेन का। ठीक है ना, ये देख लीजिए, लूट खसोट चल रही है सब जगह। वो कह रहे सब कुछ सही चल रहा है, भाई यूक्रेन के लोग ही यूक्रेन को लूट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत हाथों में बंदूक पहुंचा दी है, इसलिए पहुंच रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा, आ जाएगी 2-3 दिन में न्यूज़, है ना। खैर, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरी दुनिया है, भारत भी हमारे साथ आ जाए, जरा उनका असली चेहरा दिखा दें, क्या है। Britain guarantees our security under Budapest Memorandum. So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. Britain. यूक्रेनियन पत्रकार हैं, गुस्सा निकल रहा है, कहती कि आप लोग आ रहे हो, पोलैंड में आ रहे हो, इधर आ रहे हो, उधर आ रहे हो, आपको जहाँ जाना चाहिए यूक्रेन, आप वहाँ नहीं जा रहे, आप यूक्रेन में लड़ने नहीं जा रहे, आप कहते तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, आप हमको धोखा दे रहे हो। तो गलत लोगों पर विश्वास किया, बोले आप डरपोक हो, आप लोग डरे हुए हो। सच्चाई है, रशिया से डर लगा है। ब्रिटेन की भी हिम्मत नहीं कि रशिया पे हाथ डाल दे, क्योंकि उसको मालूम है परिणाम क्या होंगे। तो ये सच्चाई है, अब लोगों का गुस्सा निकल रहा है। और क्या किस मुंह से ये लोग बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं। अमेरिका की पिछले 20 साल की जरा हिस्ट्री देख लीजिए। पिछले 20 साल में इन्होंने न जाने कितने देशों को, अच्छा बड़ी मज़ेदार बात है, क्या मोहम्मद महराज थे और तमाम सारे लोग थे, बड़ी एक मज़ेदार बात बताता हूँ तमाम सारे मुसलमान जो यहाँ देख रहे हैं उनके लिए, है ना, नो हार्ड फीलिंग्स। एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ मैं आपको, रशिया के साथ कौन लड़ रहा है? रशिया में कौन है? मुसलमान है। रशिया के साथ कौन लड़ रहा है? चेचनिया। वो कौन है? मुस्लिम है, चेचनियन मुस्लिम्स। ठीक है। अमेरिका कौन है? अमेरिका वो है जिसने 20 साल में, पिछले 20 साल में तकरीबन 11 मुस्लिम कंट्रियों को बर्बाद कर दिया, 1 दर्जन मुस्लिम कंट्रियों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, पिछले 20 साल में, और करोड़ों की संख्या में मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। मुझे बड़ी हैरानी होती, बड़ा मजा आता है, मतलब आप लोग कितने मूर्ख हो कि आपको यही नहीं पता आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है। आप रशिया को सिर्फ इसलिए गाली देना चाहते हो रशिया को कि हिंदुस्तान के राइट विंगर रशिया के साथ खड़े हो गए, इसलिए हम इनके खिलाफ में, हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। उस अमेरिका के साथ जिसने तुम्हारे देश के देश खत्म कर दिए, जिसने तुम्हारा पूरी कौम की कौम खत्म कर दी एक लाइन से। इराक हो, लीबिया हो, इधर हो, उधर हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, किधर, एनीवेयर, यू नेम इट, दे हैव इट। तो सबसे ज़्यादा कत्लेआम तो तुम्हारा अमेरिका नहीं मचाया है, तुम अमेरिका के साथ ही खड़े हो। कमाल की बात है, बड़े कमाल के लोग हैं। और फिर वो चर्बी में लगा लगा के बंदूक की गोली, आपकी इच्छा भाई, मेरा तो काम है बताना, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। यूक्रेन झूठ बोल रहा है कि उसने ड्रोन से S-400 को उड़ा दिया, उस वीडियो में वो ट्रक S-400 ट्रक जैसा नहीं लग रहा था। सुपर कूल। ठीक है, ठीक है ना।
तो अभिनंदन अंशुमन मिश्रा जी बोलते हैं वी सपोर्ट यूएसए। हाँ सर, कायदे से तो यही बनता है, मतलब अगर धर्म के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंका जो है यूएसए ने लगाई, तो फिर यूएसए को जाना चाहिए। खैर, अब आते हैं एक और बात पर, यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन अब एक नए पैतरा अपना रहा है, और उस नए पैतरे को देखिए। ब्रेकिंग, यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर सेज यूक्रेन इज लुकिंग एट ऑप्शन ऑफ डिप्लॉइंग इंटरनेशनल पीस कीपर्स। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, इंटरनेशनल पीस कीपर्स को रखने वाले हैं। अब इंटरनेशनल पीस कीपर्स कौन से हैं? बस रशिया और ये सब तो यूएन तो आएगा नहीं इंटरनेशनल पीस कीपर्स के नाम पर, तो कौन आएगा? तो वो जिनको बुला रहे हैं ना, जिसमें ISIS वाले भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आप सोचिए, इस बंदे ने, ये जो कॉमेडियन है ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस आदमी को एक्सपीरियंस नहीं है देश कैसे चलता है। इसने इस देश को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, इस भूमि को हमेशा के लिए बंजर कर दिया। इतने लोग वहां इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि रशिया पूरी तरह से इसको अपने अधीन ले और इसको क्लेंजिंग करे, इसकी सफाई करे, तब जाकर कुछ होगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत रशिया के लिए पैदा होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के बहाने से ISIS से लेकर सारे जो लोग हैं उनको घुसा दिया गया अमेरिका द्वारा। और ये आने वाले समय में बहुत मुश्किल समय होगा रशिया के लिए, क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही डाउन होने वाला है, रशिया भी दिक्कत में आ जाएगा अगर रशिया ने प्रॉपरली क्लेंजिंग नहीं करी। और रूथलेस क्लेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, हज़ारों लोगों को आपको मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अगर सख्ती के साथ रशिया कर पाया तो ठीक है, नहीं तो रशिया के लिए आने वाला समय खराब रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इस सब के बीच हमने आपसे कहा भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। भारत, पूरा मीडिया जो है एक तरफा वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड, मोदी परेशान है, मोदी ऐसा, भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है सर। कौन बोला? मोदी बोला? वो तो 2 रोटी ज़्यादा खा रहा है, वो आराम से जाके अपनी चुनावी सभाएं करा। अभी यार पहले डिसाइड कर लो कि मोदी चुनावी सभाएं कर रहा है या मोदी हैरान परेशान होगा तो घर में बैठेगा, तो बार बार इधर उधर बात करेगा। मोदी तो आराम से घर में अपने बैठा हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त चाय नाश्ता, सुबह चुनावी सभा, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और, पूरे शेड्यूल फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मोदी तो कहीं टेंशन में, तो झूठ क्यों चल रहा है? राजेश उपाध्याय जी 100% सही समझ गए आप। अनदर अफगानिस्तान इन मेकिंग, यूक्रेन को अफगानिस्तानी बनाने का प्रयास है ये, और कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके ये अफगानिस्तान वाला पोर्शन बढ़ाने का प्रयास है। तो पूरा दर्रा जो अलग हुए हैं ना, उनको पूरे को अफगानिस्तान बनाने का प्रयास है। तो खैर, तो मोदी परेशान है, ऐसा है वैसा है, भारत के लोग रशिया का साथ नहीं दे रहे, इस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने बोला, किसी और सज्जन ने भी, यूक्रेन के साथ हैं, जो बाहर से आया उन्होंने भी बोला। काश सभी मीडिया में आपके जैसे व्यक्ति होते। मैं मीडिया में हूँ क्या? मुझे कोई नौकरी नहीं देगा भाई साहब, इतना सच बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे सच पता सबको है, बोलता कोई नहीं है, हिम्मत कोई नहीं करता बोलने की। हाँ, तो इतने सारे लोग जो बोल रहे थे रशिया के खिलाफ, रशिया युद्ध बंद करो। अब एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस एक वीडियो से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत वायरल है और रशिया के चैनल का है, ठीक है? आइए सुने जरा क्या कह रहे हैं। Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, समझ में तो आएगा नहीं, आइए पढ़ लेते हैं। I clarified during my speech at UNSC that Gilgit-Baltistan should be part of India. भैया बहुत ज़्यादा वायरल है ये क्लिप। हाँ ठीक है, अभी क्या करना है? गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का होगा, ऐसा कहना है रशिया का। तो क्या करें, रशिया का साथ लें या नहीं लें? वो जो लोग कह रहे थे यूक्रेन के लिए, यूक्रेन तो मैं गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके दिला रहा है क्या? वो जो ज्ञान वाले भौंक लिबरल्स जो हैं, जो दिन भर भौंकते हैं, और भौंक लिबरल्स कुछ कहेंगे अब इसमें? चलिए आगे सुनिए, आगे इन्होंने क्या कहा। रशिया डज नॉट सपोर्ट पाकिस्तान इनिशिएटिव टू क्रिएट गिलगिट एज प्रोविजनल प्रोविंस। PM Imran Khan come to Moscow to convince me on the issue. He talked about bringing a gas and oil pipeline from Russia to Pakistan through China and Gilgit. It is not viable idea because Pakistan is occupier in Gilgit. I talked to my cabinet members about provincial province. They condemned BAP. I meant who created BAP? They are from Gilgit. Who instructed them to do this? तमाम सारी बातें, इससे तमाम सारी बातें कही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये भाषा, देखिए फिर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ अटक जाती है, भाषा हमको नहीं आती, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि इन्होंने ये कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि ऊपर से सबटाइटल कोई भी डाल सकता है, सबटाइटल कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए भाषा बहुत आवश्यक होती है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ, किसी को आपको कोई इंटरनेशनल मुद्दा बनाना तो आप उसको इंग्लिश में बोलिए, नेशनल मुद्दा बनाना उसको हिंदी में बोलिए, शायद आप लोगों को भाषा का मतलब समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, खैर कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा